हमें ओबेसिटी का ट्रीटमेंट करना चाहिए, डायबिटीज हो या ना हो, वी शुड ट्रीट ओबेसिटी। सो आज के लेक्चर में मेरी यही कोशिश होगी कि आई विल बी एबल टू convince you all that obesity is a disease itself which affects each and every aspect of cardiovascular disorder, and how treating obesity is going to help in that. So cardiovascular disease background is a leading cause of death. आज के डेट में लगभग 60 करोड़ लोग पूरे विश्व में कार्डियोवास्कुलर डिजीज से सफर कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल बिकम 2 times by 2050. 82% of people living with cardiovascular disease are either obese or overweight. And despite the fact that over the time, with newer medications and newer intervention, death because of cardiovascular disease has reduced by 60%. But death in obese people because of cardiovascular disease has tripled. The other way to say, those who are obese and having cardiovascular disease have 3 times higher risk of dying, and that has increased in past 20 years from 1919 to 2020. So obesity as such causes increased cardiovascular morbidity and mortality, because it influences multiple factors which are associated with increased cardiovascular events, include type 2 diabetes. Obesity affects around 81% of people living with MASH or MASLD. Obesity increases risk of CKD by 70%, risk of primary hypertension by 65 to 75%. Obesity related factors cause heart failure in 10 to 15% patients, coronary heart disease more than 80%, and stroke patient 18 to 44%. So you see all the aspects of cardiovascular event, they are increased when there is concomitant obesity. And when we talk about causal factor, why obesity occurs and why does or how does it converts into increased cardiovascular event, a simple explanation could be imbalance between energy intake and energy expenditure, but it's not that much simple. This energy intake and energy expenditure imbalance and positive calorie is one aspect which is affected by genetic factors, neurobiological factors, सोशियो-इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बैकग्राउंड में जेनेटिक्स तैयार है, आपने एनर्जी एक्सपेंडिचर कम किया, एनर्जी इंटेक ज्यादा किया तो ओबेसिटी हो गई। ऐसा नहीं होता कि बहुत लोग है ना कि उनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, हम बहुत खाते हैं लेकिन 10 किलोमीटर साइकिल डेली चलाते हैं, मेहनत कर रहे हैं, सो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सो देयर आर मेनी इश्यूज, एंड व्हेन इट कन्वर्ट्स टू कार्डियोवास्कुलर इवेंट इन टर्म्स ऑफ सीवियर रिस्क, obesity increases diabetes mellitus, arterial hypertension, dyslipidemia, and obstructive sleep apnea. What percentage of different cardiovascular morbidity, that is complication, or mortality is increased by obesity? And what you could see, hypertension 49%, heart failure 41%, ischemic stroke 39%, arterial fibrillation 23%, death because of cardiovascular disease increased by 49%, coronary heart disease 22%, all cause stroke by 42%. Overall impact we can see कि एक बंदा दुबला पतला, एक बंदा मोटा, और उसको यही बीमारी हुई, तो जो मोटा है उसमें मरने की संभावना 50% ज्यादा। That is how obesity affects the overall morbidity and mortality associated with cardiovascular disease. और जब हम बात करते हैं कि भैया हमने कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर को ट्रीट कर दिया, हमने ब्लड प्रेशर को अच्छे से ट्रीट कर दिया, कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से ट्रीट कर दिया, डायबिटीज को अच्छे से ट्रीट कर दिया, फिर भी लोग क्यों मर रहे हैं? तो दैट इज व्हाट वी कॉल रेसिडुअल रिस्क। और कहीं ना कहीं ये सभी चीज आपस में मिलके कुछ इंफ्लेमेटरी मार्कर्स को बढ़ाते हैं, दैट कॉजेस इंक्रीज रिस्क विच वी कॉल रेसिडुअल रिस्क। एंड इवन इफ यू न्यूट्रलाइज अदर फैक्टर्स फॉर दिस कार्डियोवास्कुलर इवेंट, जैसे हमने न्यूट्रलाइज कर दिया कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, सेरेब्रोवास्कुलर आर्टरी डिजीज को, हार्ट फेलियर को, स्टिल यू विल सी
कि ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड हैजार्ड रिस्क। हमने हाइपरटेंशन वाले फैक्टर को, कोलेस्ट्रॉल वाले फैक्टर को, डायबिटीज वाले फैक्टर को न्यूट्रलाइज किया और तब देखा क्या इन सभी चीजों को न्यूट्रलाइज करने के बावजूद ओबेसिटी के कारण इन बीमारियों में इवेंट बढ़ रहा है क्या? एंड द रिजल्ट वाज यस, हैजार्ड रेशियो इंक्रीज बाय 1.2% टू अप टू 2%, 2 टाइम्स तक हार्ट फेलियर में होता है। इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। 2 ग्रुप है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, दोनों का इलाज हमने बराबर से किया और दोनों के रिजल्ट बिल्कुल बराबर से लाए। फिर भी जो लोग मोटे हैं उनमें हार्ट फेलियर की संभावना 2 टाइम्स है, उनके अंदर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट 1.2 टाइम्स है और उनके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चांस 1.4 to 1.5% है। So that is the residual risk we are talking about, and obesity somewhere has got a role in it. The another fact is that 20% of people living with obesity contribute to direct health care cost. ये एक अलग इम्पोर्टेंट मुद्दा हो जाता है कि हार्ट डिजीज के कारण मान लो 100 रुपए खर्च हो रहे हैं समाज के इलाज में, उस 100 रुपए में से 75 से 80 रुपया सिर्फ उस 20% लोगों में खर्च हो रहा है जो ओबीज हैं और 80% लोगों में सिर्फ 25 रुपए से काम चल जाता है। सो प्रेजेंस ऑफ ओबेसिटी लीड्स टू इंक्रीज इन कॉम्प्लिकेशंस व्हिच हैज गॉट higher direct cost, and you can see the length of those graphs as per the class 1, class 2 and class 3 of obesity. Expenditure उन डिजीजों में सभी डिजीज के लिए लिखा है, हाइपरटेंशन, एएस, सीवीडी, टाइप 2 डायबिटीज, सीकेडी। नॉन ओबीज पर्सन है, हाइपरटेंशन के इलाज में अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है तो मोटे आदमी में 175 रुपया खर्च हो रहा है। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर ऑल्सो। अब ओबेसिटी के इस बैकग्राउंड को समझने के बाद हम लोग यह समझने की कोशिश करें कि इज इट रियली रेलिवेंट फॉर इंडियन पॉपुलेशन? यस, वी आर मेटाबॉलिकली ओबीज पीपल whatever be our BMI, and we are obese at lower BMI because we do have central obesity, that is called visceral obesity. तोंद निकला हुआ है, हाथ पैर पतले हैं। कि अभी डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, सार्कोपीनिया हो गया, वहां पे क्या करना है, क्या करें। और जो इम्पोर्टेंट 2 हैं कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट अकर्स। इसके अलावा अदर रिस्क फैक्टर्स, इंडियन में टाइप 2 डायबिटीज लगभग 2 डिकेड पहले होता है। आज से 25 साल पहले जब हम लोग रेजिडेंसी कर रहे थे उस समय ये पढ़ाया जाता था कि इंडियन में डायबिटीज और हार्ट डिजीज 1 डिकेड अर्लियर देन कॉकेशियन पॉपुलेशन होता है। नाउ ओवर 25 years things have changed further.